So basically today we are learning the topic esophagus, and we understand different thing about esophagus. Honestly telling, esophagus, I will take around 8 to 10. I can take 8 to 10 hour long lectures for esophagus. And this is if I am taking up to 8 to 10 hours lecture without even repeating a single point, basically what I mean to say, if I am starting to repeat every point by every statement after each statement, then it would go to 12 hour 14 hour like that. So basically this thing is so much important. So basically what you know about the esophagus, let me just draw this. Okay, suppose this is your nose and this is your mouth, and in the mouth you will go, and here lies the nasopharynx, right? And that nasopharynx, and above, sorry, this is the oropharynx, right? So this is the Oropharynx. oropharynx, and above the oropharynx there is nasopharynx, and below the oropharynx there is hypopharynx, right? And this hypopharynx will continue into a muscular tube like structure which is called esophagus, which then penetrate the diaphragm and enter into the stomach, and then stomach will continue into your intestine and other things like rectum and anal canal, like. Okay, so basically you also know that in the front area there is a structure called as trachea, which open in which bifurcates and give the bronchus, and bronchus will again bifurcate to give bronchioles, and that will enter into the lungs. Okay, and you also know that there is some other muscular organ which is known as heart. That heart is located near the left side of the lung, which you know, right? The heart is located near to the left side, right? You know though, heart is to the left side. So basically Slightly uh, towards the right side. okay, well, you know this thing. Okay, so सब definition याद आ रहा है. Heart is a clenched shape structure located on yeah, the left side. yeah, good, good, good. So basically you also know that this trachea will extend into larynx, right? And this larynx, you know what, this larynx will open into mouth, right? There is trachea and there is larynx, and there is some cartilage which is known as cricoid cartilage. You also know this thing. And behind the Slightly incomplete. cricoid cartilage, and this muscular structure is behind the cricoid cartilage, so this is also known as cricopharynx, right? As it is Ecopharynx. yes, it is also known as cricopharynx because it is behind the cricoid cartilage, which is this Cricoid cricoid cartilage. cartilage, right? You know this thing. And this cricoid cartilage is a incomplete C shaped ring. No, it is complete though, it is complete, it is not incomplete. Complete, tell me what is the thing, is it complete or incomplete cricoid cartilage? Incomplete. You don't know this thing, cricoid cartilage is complete or incomplete? C shaped, signet like, you don't know cricoid cartilage? Name. एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा था ना वो. एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा है? ओ हाँ, माय वो गॉड! खाली लिख दिया है कि incomplete C-shaped structure. तो it is incomplete, that is what I am asking, is it complete or incomplete? Incomplete. Incomplete, yes. ठीक है, तो तो cricoid is incomplete, right? So Hmm. let me just check it one more time. No. Cricoid cartilage is complete, yaar. Cricoid cartilage complete. And composite infusion, it is complete, it is not incomplete, you are wrong. ठीक है, cricoid cartilage is complete. ठीक है, and this is a signet shape anyways. So basically this is because it is wholly enclosing the larynx area na. So this is the complete cartilage, right? So basically this is what, and behind the larynx there is esophagus, which the area is known as the cricopharynx, and below the cricopharynx lies your stomach, esophagus and stomach. Esophagus. Okay, yes, you are good. So basically there is one more structure which I want to tell you, and you must be forgetting about that structure, which is very important. Guess what is the structure? Drop. What? तो लेकिन वो तो There वर्ड्स में is होता है ना, vertebra drop na, and there is vertebra.
सबसे पीछे वर्टिब्रा होता है, तो पीछे वर्टिब्रा, देयर इज वर्टिब्रा, राइट? देयर इज सर्वाइकल वर्टिब्रा, देयर इज thoracic vertebra, there is a lumbar vertebra, isn't it? Vertebra is also present. Yes. Cervical 7, thoracic 12, lumbar 5, sacrum 1. Yes, cervical, from cervical sixth, esophagus starts from cervical sixth, right? And it punctures the diaphragm at the level of T11 vertebra. You understand by the word T11? Diaphragm. ठीक है? So basically it pierces the diaphragm at the level of T10, not T11. It pierces at the level of T10, right? And at the level of T11 there is gastroesophageal junction. Gastroesophageal junction, right? So basically what you understand by the term diaphragm, let me emphasize this point. Diaphragm has many openings, okay? So for the esophagus, the opening is at the T10 level, and for the aorta the opening is at T12 level, which you are not understanding it. I am this is what I think so, but anyways, so let's just recall back. So suppose this is your trachea, you must be seeing the trachea, this is the front view, and the arch of aorta, this is the arch of aorta which you are seeing, and to the left of the arch of aorta and in front of the aorta lies the esophagus, and that arch of aorta will go most posteriorly, behind the esophagus, and arch of aorta will also puncture the diaphragm, right? So basically diaphragm थोड़ा slanting होता है, ठीक है, थोड़ा slanting. If I am saying Dome shape. हाँ डोम शेप है पर स्लैंटिंग लाइक दैट. ये कॉपी है, ये कॉपी ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से. तो ये T10 लेवल आ गया, और ये वाला जो है ये पीछे और नीचे चला गया. देखो डिप्रेस्ड है, ये T10 है, ये ऊपर है, T10, और ये क्या नीचे में, तो ये क्या T12 लेवल पे. T12 पे तुम्हारा क्या मिलेगा, तुम्हें आर्च ऑफ एओर्टा मिलेगा. इज इट क्लियर? तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई डिफिकल्टीज आई होगी. तो ईसोफेगस, हाँ तो देखो ये जो है ना, तुम जो ये देख रहे हो ईसोफेगस, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है यहाँ पे. तो एट द लेवल ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज देयर इज सम कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट इन द ईसोफेगस. कंस्ट्रिक्शन मतलब देयर इज नैरोइंग ऑफ द ल्यूमेन. फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन. सेकेंड कंस्ट्रिक्शन कहाँ पे होगा? एट द बाइफर्केशन ऑफ द ट्रेकिया. देखो ट्रेकिया भी तो सामने से क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है. एट द बाइफर्केशन पे कहाँ मिलेगा तुम? एट द बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, समझ रहे हो? एंड एट व्हाट लेवल? जब डायफ्राग्राम अंदर घुस रहा है, सॉरी जब ईसोफेगस डायफ्राग्राम के अंदर घुस रहा है, तो जो डायफ्राग्राम का मसल इट इज आल्सो कंस्ट्रिक्टिंग द ईसोफेगस. तो एनाटॉमिकली देखा जाए तो यू गॉट 3 कंस्ट्रिक्शंस प्रेजेंट. एक C6 पे, फिर एक बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया पे, और फिर एक जहाँ पर डायफ्राग्म. यस, बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया. एक्चुअली ये जो इंसाइजर से हम लोग, ये इंसाइजर देख रहे हैं, इंसाइजर, ये इंसाइजर से हम लोग क्या करते हैं, जब राइस ट्यूब डालते हैं ना, तो राइस ट्यूब में बहुत सारा मार्किंग होता है, 15-25. तो बेसिकली तुमसे एग्जाम में नीट पीजी में पूछता है कि ये ईसोफेगस का लेंथ बताओ. ये ईसोफेगस का लेंथ कितना होता है? ईसोफेगस का लेंथ होता है 25 सेंटीमीटर. कितना होता है? 25 सेंटीमीटर. और देखा जाए फ्रॉम द इंसाइजर 40 सेंटीमीटर लेंथ होता है. इधर से इधर ऊपर. ये जो 23 लिखा है, इसका मतलब ये डिनोट कर रहा है क्या? बाइफर्केशन 23 सेंटीमीटर पे होता है. बता रहा हूँ, मेल और फीमेल के बारे में बता रहा है, ठीक है. यू मस्ट, वो तुम्हारे लेवल पे नहीं है, वो तो मेरे लेवल पे भी नहीं है, इनफैक्ट ऑनेस्टली टेलिंग यू, ठीक है. तो देखो ये क्या है, तुम्हारे तीत है, तीत से कितना दूरी नीचे पे आया? तीत से 15 सेंटीमीटर नीचे पे तुम्हें क्रिकोफैरिक्स मिला, और टोटल इंसाइजर से लेके एकदम नीचे तक 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है. और शुरू का 15 सेंटीमीटर तो मेरा यही खा गया, राइट, यही खा गया 15 सेंटीमीटर. तो 25 सेंटीमीटर का ओवरऑल पूरा लेंथ होता है. एनाटॉमिकली देखा जाए तो इसमें 4 कंस्ट्रिक्शन होते हैं, ना कि 3 कंस्ट्रिक्शन होता है. एक्चुअली जो ये एओर्टा होता है ना, ये आर्क कर रहा है, देखो ये आर्च, इट आर्चेस अराउंड द ईसोफेगस, तो इट इज आल्सो कंस्ट्रिक्टिंग, ठीक है, इस तरीके से इसको कंस्ट्रिक्ट कर रहा होगा, ठीक है. तो बेसिकली देखा जाए तो C6 लेवल पे कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, और देखो ये T4 लेवल पे, thoracic 4 T4 लेवल पे कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है, और T10 लेवल पे जब पेनिट्रेट कर रहा है तब, तो मतलब C6 T4 दोनों को जोड़ दिया, T10 3 लेवल पे ये कंस्ट्रिक्ट हो रहा होता है. बेसिकली देखा जाए तो जो ये ईसोफेगस है, जो क्रिकोफैरिंक्स वाला एरिया होता है, इट इज द मोस्ट नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द होल GIT. Basically what I mean to say is, if a structure lodges into that area and if it is not passed, मतलब if a structure बड़ा structure है,
ठीक है, बड़ा स्ट्रक्चर कैन इजीली गेट लॉज इनटू दिस एरिया बिकॉज दिस एरिया इज व्हाट वेरी मच नैरो इन द ल्यूमेन साइज. तो एनी ऑब्जेक्ट, any foreign body can easily get lodged at around near this structure. So there is another thing that if a foreign body passes this barrier, passes the barrier of the cricopharynx constriction, होल जीआईटी में वो कहीं पे भी नहीं रुकेगा क्योंकि सबसे नैरोएस्ट एरिया को वो क्रॉस कर चुका है. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम विलिंग टू टेल, राइट? सो बेसिकली नैरोएस्ट पार्ट होता है क्रिकोफैरिंग्स, ठीक है, और बिकॉज होल जीआईटी में सबसे नैरोएस्ट पार्ट यही है, ठीक है. अगर क्रिकोफैरिंग्स में कोई स्ट्रक्चर पास कर गया तो पास कर गया, अदरवाइज देयर विल बी वेरी मच डिफिकल्टीज, राइट? सो अब हम लोग बात करते हैं ईसोफेगस के थोड़े मसल्स, मतलब ईसोफेगस का क्रॉस सेक्शंस को देखते हैं, ठीक है. बट बिफोर सीइंग द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ईसोफेगस एक और डायग्राम जो बचा है उसको भी देख लो. देखो ये क्या है, तुम्हारे पीछे में जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर ये तुम्हारा क्या है, वर्टिब्रा है, ठीक है. वर्टिब्रा के आगे तुम्हें क्या मिलेगा, ये एओर्टा मिलेगा. और एओर्टा के आगे तुम्हें क्या मिलेगा, इधर एओर्टा के थोड़े एंटीरियर और थोड़े लेफ्ट साइड में देखा जाए तुम्हें क्या मिलेगा, ईसोफेगस. एट मोस्ट एंटीरियर इज योर व्हाट, इज योर ट्रेकिया विच इज बाइफरकेटिंग. देखो ये डायफ्राग्राम को देखो कैसे पेनिट्रेट करके घुस रहा है, डायफ्राग्राम को पेनिट्रेट करके घुस रहा है. तो सीइंग दिस, और दिस देखो ये एओर्टा है, ये एओर्टा का क्या है, एक ब्रांच निकला, सीलियाक ट्रैक्ट निकला, इससे बहुत सारा ब्रांचेस निकला और यही ब्रांचेस किसको सप्लाई कर रहा है, लोअर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस को सप्लाई कर रहा है डायफ्राग्राम को पेनिट्रेट करके. यू आर, और ये देखो इंफीरियर वीना कावा ये T8 लेवल में पेनिट्रेट करता है. इंफीरियर वीना कावा ऊपर जा रहा है, वो T8 लेवल पे पेनिट्रेट कर रहा है, ईसोफेगस T10 पे कर रहा है, और एओर्टा जो होता है वो T12 पे पेनिट्रेट कर रहा है. 8 10 12. Understanding the anatomy. So basically if I have to tell you the special features, the point is the special features of esophagus, right? What is the special features? First feature is that there is no serosa. You must be knowing that any visceral hollow organ has 4 layer, serosa and water, muscle layer and submucosa and mucosa. This is the thing that you are having some concept about it, right? So actually in the esophagus there is no serosa, ठीक है. So what's the matter in it? देखो देखा जाए तो इफ आई हैव टू राइट द लेयर, एक बार लेयर फटाफट लिख दे रहा हूँ. कौन कौन सा है, म्यूकोजा है, सब म्यूकोसा है, और तुम्हें पता होगा आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर, ये मैंने बहुत बताया, OLIC याद करने का तरीका होता है. एंड बाहर में पूरा जीआईटी में यही पैटर्न होता है, ठीक है. यही मसल होता है ल्यूमेन का. इनर में क्या है, हाँ स्टमक में एक अलग होता है. हाँ ओके बट अभी तो इतना तो याद रख लो, मतलब पूरे जीआईटी में ये फॉलो करना है अपने को नियम. ईसोफेगस में सीरोसा नहीं होता. तो जब ये फाइब्रस लेयर ईसोफेगस में नहीं है, यूरोलॉजी में जो पढ़ोगे यूरेटर में, तो यूरेटर में तुम्हारे पास आता है ये यूरेटर का ल्यूमेन क्या होता है, आउटर सर्कुलर इनर लॉन्गिट्यूडनल, वो यूरेटर में है, ठीक है. तो उधर स्टमक में दोनों के बीच में एक ऑब्लिक लेयर होता है, ये होता है, ठीक है बेसिकली. सो अगेन आगे बढ़ते हैं हम लोग और ये देखते हैं. तो देखो म्यूकोजा और सब म्यूकोजा के बीच में एक और लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोजा. क्या बोलते हैं, मस्कुलरिस म्यूकोजा, मस्कुलरिस म्यूकोजा बोलते हैं, ठीक है. ये वाला जो लेयर है मसल लेयर, इसको हम लोग लैमिना प्रोप्रिया भी बोलते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैमिना प्रोप्रिया या मस्कुलरिस प्रोप्रिया, एक ही बात है, ठीक है. तो देखो पूरे जीआईटी, देखो अब तुम्हें ना एक प्लेक्सस मतलब समझना पड़ेगा. व्हाट इज दिस प्लेक्सस? प्लेक्सस मतलब वेसल्स. अब जो भी हमारे एब्डोमेन में देखो, ये डायग्राम देखो, जो भी एब्डोमेन में जो वेसल है, एब्डोमेन में वेसल मतलब तुम ये एओर्टा को देख पा रहे होगे, ये एओर्टा क्या कर रहा है, ब्रांचेस दे रहा है, एंड दैट ब्रांचेस इज सप्लाइंग द ईसोफेगस एंड द स्टमक, ठीक है. तो होल जीआईटी हैज दिस ब्रांचेस एंड दैट ब्रांच कैसे पेनिट्रेट करेगा, ये कैसे सप्लाई कर रहा है स्टमक को, ये जो ब्रांचेस है स्टमक के पास गया, स्टमक के जो ये जो वॉल है ना, इसको पेनिट्रेट करके अंदर घुस गया, अंदर घुसा मतलब सेरोसा को पेनिट्रेट किया होगा, फिर मस्कुलरिस म्यूकोसा नहीं, एट इज लैमिना प्रोप्रिया को पेनिट्रेट किया होगा, एंड आफ्टर लैमिना प्रोप्रिया को किसको पेनिट्रेट किया होगा, सब म्यूकोसा को, राइट. तो उधर क्या होता है ना, प्लेक्सस होता है. सेरोसा के बाद ये लोग क्या करते हैं, जंजाल बिछा देते हैं. एक ब्रांच गई जैसे ही सेरोसा को पेनिट्रेट की और अंदर में क्या कर दिया, जाल बिछा दिया, ठीक है. दैट इज कॉल्ड सब सेरोसल प्लेक्सस. एंड सिंस ईसोफेगस में सेरोसा है ही नहीं, तो जब सेरोसा नहीं है तो सब सेरोसल प्लेक्सस तो हो ही नहीं सकता है, नंगा थोड़ी होगा कोई भी वेसल, ठीक है देखा जाए तो. यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से?
तो देर इज नो सब सेरोसल प्लेक्सस, ठीक है। सो बेसिकली तो ये सेरोसल प्लेक्सस कहाँ पे आए फिर, जब यहाँ पे नहीं तो कहाँ पे रखेंगे, एक्चुअली वो होते हैं तुम्हारे सब म्यूकोजा में, इसी में मस्कुलरिस म्यूकोजा में तुम्हें देखने को मिलता है प्लेक्सस। मतलब वो सेरोसा में नहीं होता, वो किसको पेनिट्रेट करेगा, डायरेक्ट लैमिना प्रोप्रिया को पेनिट्रेट करेगा और सब म्यूकोजा में जाके क्या कर देगा, अपना ब्रांचेस दे देगा। समझ में आ रहा है। ईसोफेजियल में जो वेन्स होती हैं या लिम्फेटिक्स होती हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस मस्कुलरिस म्यूकोजा में प्रेजेंट होता है। वेन्स एंड लिम्फेटिक्स होना कहाँ चाहिए था, सबसेरोसल होना चाहिए था, ठीक है। और पूरे जीआईटी में देखा जाए तो सब म्यूकोजा जो होता है वो टफेस्ट लेयर होता है। टफेस्ट लेयर है, इसका क्या एडवांटेज है, देखो तुम्हारे सामने ना मैं एक ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है। छोड़ो ये तुम्हारे लेवल पे ज़्यादा हो जाएगा शायद, लेकिन ठीक है, अब क्या है, अब तो कुछ सीखने ही आए हैं। तो देखो क्या होता है कि तुम्हारे सामने मैं यहाँ पे एक लेयर बना रहा हूँ, ये है तुम्हारा म्यूकोजा का लेयर और ये है तुम्हारा मान लो मस्कुलर लेयर, मसल्स वाला लेयर है, बीच में सब म्यूकोजा है, ठीक है। इधर सब म्यूकोजा बना दिया मैंने। तो क्या होता है जब भी तुमने क्या किया, ईसोफेगस को काट दिया ऐसे, ये ट्यूब था, काट दिया, कुछ ऑपरेशन करना था, ऑपरेशन करके उस कैंसर को बाहर फेंक दिया, बीच वाला हिस्सा बाहर फेंक दिया। अब इसको वापस ज्वाइन करना पड़ेगा ना, ईसोफेगस को कनेक्ट करना पड़ेगा। ये ईसोफेगस का पूरा पाइप था, इसके बीच में कैंसर आया, कैंसर को ऊपर से काट के फेंक दिया, अब इस दोनों पाइप को जोड़ेगा। जब जोड़ेगा दोनों ल्यूमेन को ना ऊपर नीचे, तो यहाँ पे तुझे क्या मानना पड़ेगा, स्टिचेस मारना पड़ेगा, स्टिचेस मारना पड़ेगा। तो ये इसको ये देख तो खुल जाएगा तो ये, तो हमेशा सब म्यूकोसा में मारते हैं क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो स्टिचेस इस तरीके से मारते हैं कि ये ऐसे मतलब क्योंकि सब म्यूकोसा स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ना, तो सब म्यूकोसा को आप जरूर हम बताया, लोग, हाँ सब ये भी म्यूको, बता दें कि बाकी सब नाजुक लेयर है, उसमें मारेगा तो वो तो फट के निकल जाएगा, हाँ इसलिए फट के हमेशा निकल सब जाएगा, अगर म्यूकोसा। इधर मार देते तो ये सब म्यूकोसा टाइट है ही नहीं, वो आराम से इसको चीर के निकल जाता। सब म्यूकोसा मस्ट पास टू सब म्यूकोसा, ठीक है। देयर इज फुल थिकनेस एनास्टोस्मोसिस, फुल थिकनेस मतलब ये पूरा थिकनेस को कवर कर लिया, पार्शियल मतलब सिर्फ छू के निकल गया, तो ये पार्शियल थिकनेस हो गया, ठीक है। फुल थिकनेस पार्शियल थिकनेस। एनास्टोस्मोसिस मतलब क्या होता है, एनास्टोस्मोसिस मतलब होता है जोड़ना, एनास्टोस्मोसिस होता है नया कनेक्शन बनाना, उसको एनास्टोस्मोसिस बोलते हैं, ANASTOSMOSIS एनास्टोस्मोसिस, ठीक है। एक और चीज़ इसमें ये कि ईसोफेगस के जो मसल्स होते हैं वो हेलिकॉइडल होते हैं। हेलिकॉइडल मसल्स, हेलिक्स समझ तो ऐसे 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 हेलिक्स, हेलिकॉइडल मसल्स होते हैं। तो अगर मान लो एक पेशेंट है और उसको बीमारी है डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म, कौन सा बीमारी है, डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म, मतलब समझना, डिफ्यूज मतलब पूरे ईसोफेगस में फैला हुआ, स्पाज्म मतलब मसल पूरे कॉन्ट्रैक्शन में चले गया है। तो ऊपर से लेकर जब पूरा कॉन्ट्रैक्शन में चला गया है तो पूरा हेलिकॉइडल पैटर्न जो होगा, जब तुम अच्छा एक इन्वेस्टिगेशन है जिसका नाम है, बता दो तुम्हें मालूम नहीं होगा, बेरियम मील, बेरियम स्वालो, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, ठीक है। देखो अगर तुम्हें क्या है, बेरियम क्या है, ये एक है ना, ये ओपेक सब्सटेंस होता है। तुम क्या करते हो जब एक्सरे लेते हो ना, तो एक्सरे ये तो खाली हॉलो हाँ, ऑर्गन है, ये एक्सरे में नहीं ये आएगा। मुझे बता, मिल वो देते हैं क्या कि खिलाते हैं हाँ एक्सरे हाँ, के तो पहले, ये जिससे एक्सरे स्टमक में के दिख लिए, जाएगी। बहुत बढ़िया, ये स्टमक के लिए करते हैं, और बेरियम स्वालो जो होता है वो ईसोफेगस के लिए करते हैं, ठीक है। और तो बेसिकली क्या तो करते हैं बेरियम खिला, हाँ बेरियम डालते हैं और फिर एक्सरे लेते हैं। बेरियम ओपेक सब्सटेंस होता है ना, तो अगर कोई भी एनाटॉमिकल चेंजेस है, कोई भी तो डिस्टॉर्शन है, रिफ्लेक्स तो क्या? बेरियम वहाँ पे रुक जाएगा और हमको आराम से वो एनाटॉमिकल जो डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में वो हम देख सकते हैं, ठीक है। तो बेरियम मील में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस, कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस ऑफ स्टमक ऑफ ईसोफेगस देखने को मिलता है। सोच के देखो हेलिकॉइडल है, कॉर्क का स्क्रू की तरह तुम्हें दिखेगा बेरियम मील में, ठीक है। यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, देखो दिखाते हैं कॉर्क स्क्रू अपीयरेंस। डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पाज्म में देखो हेलिकॉइडल मसल्स थे और पूरे ऐसे 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 कॉर्क्स्क्रू अपीयरेंस तुमको देखने को मिला। बेरियम मील है, देखो व्हाइट कलर का दिख रहा है, तो व्हाइट कलर का दिखता नहीं तुम्हें नॉर्मली, ठीक है। देखो और देख लो, नीचे देखो कैसे स्पाज्म में, जब मसल स्पाज्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अपना पूरा शेप ले लिया ये, हेलिकल से। बिल्कुल समझ रहे हो उस चीज़ को। तो एक और चीज़ इसमें ये है, स्टमक है ना, एक और प्रॉपर्टी होती है ईसोफेगस की, ईसोफेगस की थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्टेंटिबिलिटी। डिस्टेंटिबिलिटी मतलब क्या हुई, ईसोफेगस जो होता है वो रिलैक्स कर जाता है, ठीक है।
तो जैसे मान लो कि ये ईसोफेगस है और ये स्टमक है, तो ईसोफेगस में अगर मान लो यहाँ पे तुम्हें कोई कैंसर है, ठीक है, तो कैंसर है तो क्या होगा, खाने जब तुम कैंसर हो गया नीचे में तो खाने पीने में क्या होना चाहिए, दिक्कत होना चाहिए ना, क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, नीचे जा नहीं पाएगा, निकलने में प्रॉब्लम होगा। निकलने में जो प्रॉब्लम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्फेजिया, खाने में दिक्कत हो रही है डिस्फेजिया, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि ईसोफेगस में डिस्टेंशन का प्रॉपर्टी है, तो अगर कोई कैंसर हो भी जाता है तो क्या हो जाएगा, कैंसर की वजह से ये डिस्टेंट कर जाएगा, तो डिस्फेजिया में जो डिस्पेजिया जो होगा वो बहुत लेट आएगा, वो पहले नहीं आएगा, क्या आएगा, बहुत लेट आएगा। जब कैंसर हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा, जब इस ईसोफेगस स्टमक होने के गार पे नहीं रहेगा, तब मतलब 70% प्रोग्रेशन हो जाता है ना, तब जाके डिस्पेजिया। तो डिस्पेजिया इज अ लेट फीचर इन कैंसर, मतलब खाने में दिक्कत होना, अगर स्टमक का कैंसर हो गया, डिस्पेजिया इज अ लेट फीचर। क्लियर। वाइट डिस्पेजिया इज अ लेट फीचर बिकॉज स्टमक हैज़ अ प्रॉपर्टी, बहुत बाद में, जब भी पेशेंट आया मेरे पास एंड ही इज़ कंप्लेनिंग कि मेरे को खाने में दिक्कत हो रहा है, मेरे को समझ में आ जाता है इसका जो कैंसर है बहुत ज़्यादा फैल गया है बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ट्रीटिंग, सो बेसिकली पैलिएटिव केयर देंगे और उसको जो भी इंजेक्शन है ताकि दे देंगे ताकि उसको दर्द ना हो। हाँ मतलब निगलने में प्रॉब्लम होता है, हाँ, डिस्पेरिया ब्लॉकेज मतलब होती है। निकलने में प्रॉब्लम, लेकिन जब कैंसर शुरुआत में होगा तब निकलने में प्रॉब्लम नहीं होगा, जब कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तब मतलब निकलने लगेगा, में प्रॉब्लम होगा। मतलब खाली लगेगा कुछ है इधर, हाँ ऐसा। तो बेसिकली बहुत लेट फीचर होता है, तो जब बहुत बाद में जाके मालूम चलता है, बट वो बहुत लेट हो गया होता है उस वक्त, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ईसोफेगस के साथ कौन एंटर कर रहा है, बहुत सारा ब्रांचेस देखो एंटर कर रहा है ईसोफेगस के साथ, दिख रहा है, ये गैस्ट्रिक आर्टरीज है बहुत सारी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी तुम्हारे लेवल पे मतलब नहीं हो तो एनीवे क्योंकि बोला, मतलब देयर आर मेनी ब्रांचेस, एक ब्रांचेस लेफ्ट तो वो एंटर कर रही हैं, ये भी देखो यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वैसे एंटर कर रहे होते हैं। तो अ, अब हम लोग बात करते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में, भी क्या ही बात करें। हाँ, म्यूकोजा ऑफ ईसोफेगस के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। म्यूकोजा ऑफ ईसोफेगस वेरी इंपॉर्टेंट, वाई आई एम सेइंग वेरी इंपॉर्टेंट, तुमको समझ में आएगा। देखो ईसोफेगस के ना देखा जाए तो दो तरह के म्यूकोजा होते हैं ईसोफेगस में। ईसोफेगस में दो तरह के म्यूकोजा होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारे सामने ईसोफेगस लिया, ये स्टमक लिया, ठीक है। स्टमक में क्या है, एसिड एनवायरनमेंट है, राइट। स्टमक में क्या है, एसिड एनवायरनमेंट है। और ये जो म्यूकोजा होता है, म्यूकोजा में तुम्हें क्या देखने को मिलता है, स्क्वामस एपिथेलियम देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, स्क्वामस एपिथेलियम देखने को मिलता है, ठीक है। रुको ना यार एक मिनट, ये कौन सा एपिथेलियम देखने को मिला है, अब मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, डायाफ्राग्राम बना दिया, ठीक है। डायाफ्राग्राम से क्या होता है, 2 to 3 सेंटीमीटर नीचे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, 2 to 3 सेंटीमीटर नीचे तुम्हें देखने को मिलेगा गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये देखो ये जो डायाफ्राग्राम है ना, बिकॉज ऑफ द डायाफ्राग्राम ये क्या कर रहा है, स्फिंक्टर की तरह बिहेव कर रहा है इसोफेगस, ठीक है। इसोफेगस का ये वाला एरिया वो स्फिंक्टर की तरह बिहेव कर रहा है बिकॉज ऑफ द डायाफ्राग्राम, क्योंकि देखो ट्यूब है, ये डायाफ्राग्राम है, इसको कंप्रेस कर दिया नीचे से, तो इसको कोई भी खाना नीचे से ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो स्फिंक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब क्या होता है ना, देखो इसके नीचे वाला जो एरिया होता है ना, एसिड यहाँ से यहाँ तक आ तो इतना तो आ ही सकता है, इस तरीके से देखा जाए तो ये एरिया जो होता है एकदम हाई प्रेशर जोन होता है, क्योंकि स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर क्लोज कर दिया इसको, तो ये एरिया क्या बन गया, हाई प्रेशर, इसके ऊपर नॉर्मल प्रेशर है, ये एरिया हाई प्रेशर है, ठीक है। देखा जाए तो जो भी खाना होता है वो नीचे चला जाता है, और नॉर्मली इधर से खाना ऊपर नहीं जा पाता है, इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। इन दोनों के बीच में अब स्टमक में कौन सा एपिथेलियम होता है, कॉलमनर एपिथेलियम होता है, राइट। तो देखो एक चीज़ तुम्हें समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एपिथेलियम होता है उसका नाम है तुम्हारा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, राइट। एंड इस स्टमक में कौन सा एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो क्या होता है, जो स्क्वैमस वाला जो एपिथेलियम स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, ये एसिड प्रोन होता है, एसिड के लगते ही इसमें डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, एसिड के लगते डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब पीएच लेस देन 4 पे इसमें डैमेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और जब डैमेज होगा तो क्या होगा, इसके म्यूकोसा में अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा, एसिड के साथ डैमेज हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, अल्सर बन जाएगा, डिप्रेशन बन जाएंगे, घाव बन जाएगा, है ना, जब भी। तो बेसिकली देखा जाए तो एसिड को टॉलरेट करने के लिए कौन से सेल्स है, कॉलमनर सेल्स है, जो क्या सीक्रेट करते हैं म्यूकस, कॉलमनर सेल्स है। और एक और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं तुम्हारे, म्यूकस नेक सेल्स होते हैं, ठीक है। कौन से सेल्स होते हैं, म्यूकस नेक सेल्स होते हैं, पढ़ा होगा स्टमक में म्यूकस नेक सेल्स, म्यूकस नेक सेल्स, पेप्टिक कंजूट सेल्स,
हाँ तो खैर एनीवेज, तो देखो क्या होता है, ये कॉलमनर म्यूकोसा जो है ना, ये ऊपर की तरफ इधर रहता है। इधर कौन सा म्यूकोसा रहता है? कॉलमनर म्यूकोसा रहता है। बिकॉज ऑफ स्टमक का एसिड इधर तक तो जा ही सकता है, ऐसा बात तो है नहीं कि जा नहीं सकता है। समझ रहे हो इस चीज़ को? ऊपर से लेकर ये नीचे तक ये कौन सा एपिथेलियम था? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस। और नीचे में तुम्हारा कौन सा एपिथेलियम बना? कॉलमनर एपिथेलियम। तो पूरे ईसोफेगस में दो तरह के एपिथेलियम होते हैं। अपर 2/3 से ज़्यादा एरिया में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? स्क्वामस। और नीचे वाले में क्या देखने को मिलेगा? कॉलमनर देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है, एक लाइन होता है इन दोनों के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं जेड लाइन। क्या बोलते हैं? जेड लाइन बोलते हैं। इट इज जेड लाइन इज बिलो द डायाफ्राम एंड अबव द जी जंक्शन। ठीक है, मज़ा आ रहा है? इट इज़ बिलो द डायाफ्राम अबव द जी जंक्शन। इसको तुम एंडोस्कोपी में देख सकते हो इसको। ठीक है। और इट इज़ हाफ टू 1 सेंटीमीटर अबव द जी जंक्शन। आधा से 1 सेंटीमीटर ऊपर में होता है जी जंक्शन के। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब भी इस वाले एपिथीलियम में कैंसर होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा मतलब एपिथीलियल का कैंसर को कार्सिनोमा बोलते हैं। एपिथीलियल टिश्यू का कैंसर को कार्सिनोमा बोलते हैं। तो ये एपिथीलियल टिश्यू है, तो ये क्या हुआ? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। और अगर कॉलमनर सेल्स में अगर कैंसर हो जाए नीचे वाले में तो उसको हम लोग बोलते हैं अडीनो कार्सिनोमा। क्या बोलते हैं? अडीनो कार्सिनोमा जो होता है ना, वो देखो ग्लैंड जो होते हैं ना, ग्लैंड तुम्हें तो पता है ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग ग्लैंड। तो ग्लैंड का क्या, ग्लैंड को हम लोग एडिनो बोलते हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया एडिनो कार्सिनोमा। कॉलमनर सेल्स के कैंसर का नाम होता है एडिनो कार्सिनोमा। तो बेसिकली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऊपर होता है और एडिनो कार्सिनोमा जो होता है वो नीचे को देखने को मिलता है। ठीक है। तो देखा जाए तो पूरे क्या बोलते हैं, जी जंक्शन से पहले तक जितना भी है ये, तुम्हें अगर तुम देखोगे ना ऊपर में, तो होल जीआईटी जो है, जी जंक्शन से स्टार्ट कर दो नीचे तक जाओ, सब जगह क्या होता है? कॉलमनर एपिथेलियम तुमको देखने को मिलेगा। चाहे तुम इंटेस्टाइन ले लो, चाहे तुम स्टमक ले लो। हाँ थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल अगर तुम गॉल ब्लैडर ले लेते हो तो गॉल ब्लैडर में तुमको एक कॉलमनर मिलेगा, और क्या मिलेगा? कॉलमनर के साथ साथ माइक्रोविलाई मिलेगा। अगर इंटेस्टाइन ले लोगे तो कॉलमनर के साथ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम मिलेगा। ठीक है। और अगर तुम इधर ले लोगे तो इधर गॉबलेट सेल्स भी तुम्हें मिल जाएंगे। बेसिकली यही होता है, स्क्वामस एपिथेलियम को जब तुम एसिड दे देते हो तो उसमें डैमेज हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ डैमेज वो क्या करता है? अपना नेचर को चेंज कर लेता है। उसको हम लोग बोलते हैं मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया आगे जाके पढ़ोगे मेटाप्लेजिया क्या होता है। मेटाप्लेजिया इज जस्ट अ टर्म कि भाई ये स्क्वामस था लेकिन अभी ये क्या बिहेव कर रहा है? कॉलमनर एपिथेलियम की तरह बिहेव कर रहा है। एंड बिकॉज जो इंटेस्टाइन होते हैं उसके पास भी वही सेल्स होते हैं और वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं, और वो जो ईसोफेगस है वो भी क्या करेगा? म्यूकस सीक्रेट करेगा। तो बिकॉज ऑफ द डैमेज वो क्या करेगा? उसके अंदर में गॉबलेट सेल्स बनना स्टार्ट हो जाता है, अडेप्टेशन की वजह से उसमें गॉबलेट सेल बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको हम लोग इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया भी बोलते हैं। हमको ऐसा लगता है कि इंटेस्टाइन का जो कॉलमनर सेल्स है वो यहाँ पे आ गया है। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो बेसिकली अगर मान लो किसी इंसान को बार बार एक बीमारी है, नाम सुना होगा, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, जीईआरडी, एक बीमारी होती है। उसमें क्या होता है? स्टमक का जो एसिड होता है वो बार बार ऊपर चला जाता है, जिससे हम लोग को हार्ट बंद, छाती जलता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं ढकार आ रहा है, खट्टा खट्टा ढकार, छाती जल रहा है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? बार बार एसिड आएगा और बार बार डैमेज होते रहेगा। तो तुम्हें ये जो तुम्हें कॉलमनर एपिथेलियम है वो ऊपर चढ़ा हुआ मिलेगा ना, जो नॉर्मली कितना थोड़ा ही होता है, हाफ टू 1 सेंट, इधर तक इतना ही तक होता है, हाफ टू 1 सेंटीमीटर तो लगेगा तक, यहाँ लेकिन पर थोड़ा और हार्ट ऊपर तक वालों को। चढ़ जाएगा। समझ रहे हो? इसका हाइट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा इस कॉलमनर कंडीशन को एपिथेलियम का। हाँ इस कंडीशन को ही बोल देंगे ना तब इंटेस्टाइनल मेटाफीजिया। हाँ मेटाप्लेजिया, इंटेस्टाइन मेटाप्लेजिया मतलब इंटेस्टाइन का सेल का दिखता है हमको, कैसा लग रहा है कि इंटेस्टाइन का सेल आ गया लगे ईसोफेगस के अंदर ऐसा में। कि उसके जैसा हो गया। हाँ तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं बैरेट्स ईसोफेगस। बैरेट्स ईसोफेगस। बैरेट्स हाई मतलब ये कैंसरस होता है बैरेट्स। ठीक है, बैरेट्स कैंसरस होता है। और लॉन्ग सेगमेंट बैरेट मतलब ये हो गया जब इसका हाइट जो है, इसका जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा हो गया। अगर इसका हाइट जो है ना, ये हाइट जो मैं कह रहा था, अगर ये 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गया, तुम्हें दिख रहा है अगर कॉलमनर एपिथेलियम, तो उसको बोलेंगे लॉन्ग सेगमेंट बैरेट, हाईली कैंसरस देखा जाए तो तो बेसिकली हाँ इसका फिर क्या होगा इलाज? बता रहा हूँ इलाज क्या होगा। स्टार्टिंग। बेसिकली देखा जाए तो जो मिडल 1/3 होता है ना ईसोफेगस का मिडल 1/3 जो होता है, इट इज़ वेरी कॉमन, मतलब मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर इज मिडल 1/3 ऑफ ईसोफेगस। ठीक है। और बैरेट के बारे में बता दिया। ट्रीटमेंट देखा जाए, अगर तुम कैसे देखो, कैसे पता करोगे? अपर जीआई एंडोस्कोपी। जब तुम एंडोस्कोपी करते हो, गले में कैमरा डालते हो, तो कैमरा डालने से क्या होता है, तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? बैरेट्स ईसोफेगस। देखो तुम्हें दिखाता हूँ बैरेट्स, बहुत बढ़िया लगेगा। ईसोफेगस में समझ में आ जाएगा कि इसको गले में जी आर डी है कि नहीं है, बैरेट्स।
में मतलब वो कैमरा डाल के हो, तो हाँ एंडोस्कोपी सर्जरी भी वही होता है क्या, हाँ, वो वो जो कैमरा डाल के ही एक होता है, हाँ। है? देखो, बैरेट इसोफेगस अगर तुम देखोगे तो देखो क्या है, रेडनेस, क्योंकि एसिड की वजह से क्या डैमेज हो रहा है, और डैमेज की वजह से तुम्हें क्या रेडनेस देखने को मिलेगा। ये हाँ वाला देखो। डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम देखो। एक जंक्शन है, एक ज़्यादा डीप रेड है, एक नॉर्मल है, ये ऊपर से देख रहे हैं हम, ठीक है। तो एक तुम्हें सर्कल दिख रहा है, सर्कल विच इज डिफरेंशिएटिंग द ऊपर से कॉलमनर एपिथेलियम फ्रॉम द स्क्वेमस। ये जो हाइट है ये ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा ऊपर तक आ जाता है, दिस इज द बैरेट्स इसोफेगस, राइट। लाल वाला इसका मतलब एरिथ्मा हो रखा है वहाँ पे, ठीक है। चलो, अब हम लोग देखते हैं अगर कैंसरस है कि नहीं, कैसे देखेंगे। कैंसरस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी करने के बाद हम लोग उस पर डाई डाल देते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कॉलमनर कैंसर का सस्पेक्ट है तो लोग मिथिलिन ब्लू डाई डाल देते हैं। तुम्हारे लेवल पे नहीं है मिथिलिन ब्लू डाई, और अगर स्क्वैमस है तो लुगोल आयोडीन डाल देते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो अब हम लोग बात करते हैं, हाँ अब डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। डिजीज़, ठीक है। ईसोफेगस में क्या क्या बीमारी हो सकता है। पहला बीमारी का नाम है डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम, ये डाइवर्टिकुलम क्या होता है देखो। डाइवर्टिकुलम सिंपली मीन्स आउट पाउचिंग। इसका मतलब होता है आउट पाउचिंग, मतलब देखो यहाँ दिखाता हूँ, दोनों में से कोई वर्ड समझ में नहीं है। अभी समझ में आ जाएगा। आसान है एनाटॉमी तो। हाँ हाँ, एनाटॉमी आसान है। या सो अब हम लोग एक टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है डाइवर्टिकुलम या आउट पाउचिंग, ठीक है। तो ये आउट पाउचिंग को अगर तुम्हें समझना है तो सबसे पहले तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें क्या यहाँ पे ट्रेकिया दिख रहा है, एंटी देखो ये एंटीरियर है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, क्या हुआ ये, यस। तो देखो ये तुम्हें क्या दिख रहा है, ट्रेकिया है ये, और ट्रेकिया के पीछे क्या है, ये ईसोफेगस है जो रेड कलर से है बना हुआ, ठीक है। ईसोफेगस ये सामने है एंटीरियर ये रहा, और ये क्या है पोस्टीरियर है, ये इधर मतलब ऐसे किया हुआ है, सामने ये ट्रेकिया और पीछे ईसोफेगस है, ठीक है। अब तुम देखोगे यहाँ पे एक कार्टिलेज होता है, उसको बोलते हैं थायराइड कार्ट, इधर पीछे में थायराइड ग्लैंड और इधर थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। और ये ट्रेकिया है। थायराइड कार्टिलेज से क्या निकलता है, मसल निकलता है जो पीछे की तरफ जाता है, और ईसोफेगस को क्या कर देता है देखो, कवर कर देता है दोनों साइड से, ठीक है। समझ रहा है इस चीज़ को। कौन सा मसल बोलेंगे इसको, इसको हम लोग बोलेंगे, थायराइड कार्डियक हाँ, मसल। थायरोफेरेंजियस मसल, क्या बोलेंगे, थायरोफेरेंजियस मसल, ठीक है। थायरोफेरेंजियस, थायरो और फेरिंग्स है ना, थायरो मतलब थायराइड, फेरिंग्स मतलब थायरोफेरेंजियस मसल हो गया, ठीक है। अच्छा, थायरोफेरेंजियस हो गया। इसके बाद ये जो मसल दिख रहा है, ये वाला मसल देखो हॉरिजॉन्टल क्रिकॉइड, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज था ट्रेकिया में, और ये मसल दिख रहा है जो पीछे की तरफ आ रहा है, पीछे की तरफ क्रिकॉइड कार्टिलेज से, इसको क्या बोला, क्रिकोफेरेंजियस, क्योंकि फेरिंग्स है तो क्रिकोफेरेंजियस मसल। ये मसल दिख, दोनों के बीच में ना एक स्पेस होता है जो क्या होता है, खाली होता है, ठीक है। देखो एक और डायग्राम में समझ में आएगा अभी। देखो दोनों के बीच में ये एरिया दिख रहा है, क्रिकोफेरिंग्स, देखो कौन सा है, क्रिकोफेरिंग्स समझो, क्रिकोफेरिंग्स, क्रिकोफेरिंग्स ये वाला मसल है, और ये थायरोफेरिंग, वो दोनों के बीच में क्या एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल जो होता है वीक जोन होता है, क्या होता है, वीक जोन, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे वैसे कीलियन डाइसेस में, पहले हम लोग देख रहे हैं डाइवर्टिकुलम। डाइवर्टिकुलम क्या होता है, डाइवर्टिकुलम मतलब होता है आउट पाउचिंग, ठीक है। जैसे क्या बोला मैंने, आउट पाउचिंग मतलब पाउच निकल जाना, क्या निकल जाना, पाउच निकल जाना। तुम्हारे सामने एक काम करता हूँ मैं, ये ईसोफेगस बना रहा हूँ, ईसोफेगस का जो तुम ट्यूब कर रहे थे, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बताओ ये ये स्टमक, फर्स्ट ईयर। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट ईयर नहीं है,
ये देखो ये ईसोफेगस बनाया और ये स्टमक बनाया, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या है, ये स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर है, ठीक है। अभी देखो मैं ये कहती हूँ, नॉर्मली हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाता है और खाना नीचे चला जाता है, ठीक है। मैं वो कंडीशन ले रहा हूँ जिसमें ये स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं कर रहा, ठीक है। अगर स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं कर रहा तो क्या होगा, अगर स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं कर रहा तो इसके ऊपर में जो प्रेशर होगा वो क्या इंक्रीज हो जाएगा, खाना खाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि खाना नीचे स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं कर रहा है ना, स्फिंक्टर खाना खाते ही रिलैक्स कर जाता है, थूक घूटते कुछ भी तो नीचे चला जाता है ये, लेकिन अभी रिलैक्स नहीं कर रहा है। तो अगर ये रिलैक्स, हाँ रिलैक्स नहीं कर रहा तो क्या होगा, यहाँ पे इसके प्रॉक्सिमल पार्ट में प्रेशर ज़्यादा होगा कि इसके डिस्टल पार्ट में प्रेशर ज़्यादा होगा, प्रॉक्सिमल पार्ट, प्रॉक्सिमल मतलब ऊपर वाले हिस्से में प्रेशर ज़्यादा होगा ना। अगर ये स्फिंक्टर रिलैक्स करता तो खाना नीचे की तरफ चला जाता, तो खाना या थूक नीचे की तरफ जा रहा तो ऊपर में क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा ही होगा एक तरीके से देखा जाए। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर वाला एरिया, अगर एक ट्यूब में प्रेशर ज़्यादा है तो उसमें से क्या होता है, ये आउट पाउचिंग हो जाता है, आउट पाउचिंग निकल जाता है पीछे की तरफ, समझ में आ रहा है। होता क्या बेसिकली, ये इसोफेगस ट्यूब है, इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं, सिरोसा होता नहीं है, मसल के लेयर है, सब म्यूकोजा है, फिर तुम्हारा क्या बोलते हैं म्यूकोजा लेयर है। तो जब ये इसोफेगस ट्यूब ले लिया, ये लंबा सा ट्यूब है, तो इस पीछे में क्या निकल जाएगा, पाउच निकल जाएगा, इसके जो मसल फाइबर्स है वो डेसिकेट कर जाएंगे, मसल के जो फाइबर है वो फट जाएंगे बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, और वहाँ से क्या निकलेगा, पीछे की तरफ म्यूकोजा निकल जाएगा, समझ रहे हैं। मसल फाइबर तो ऐसे आउटर लॉन्गिट्यूड इनर सर्कुलर है, म्यूकोसा कंस्ट्रिक्ट किया, प्रेशर ज़्यादा है तो ये मसल फाइबर डेसिकेट कर जाएंगे, और इसका जो म्यूकोसा है वो क्या आउट पाउच हो जाएगा, बैलून की तरह बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द डाइवर्टिकुलम, ये डाइवर्टिकुलम है, ठीक है, आउट पाउचिंग इसका मतलब होता है। एंड हाँ हो जाता होगा, क्या, इसकी वजह से डेथ हो जाता होगा, इसकी वजह से डेथ हो जाता होगा। नहीं नहीं डेथ क्यों, डेथ नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो पाउच देखते फिर वो कैसे सही होता है, अपने आप सही हो जाता है। हाँ करना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो बेसिकली देखो इसमें ये जो आउट पाउच निकलेगा, इस पाउच में क्या मसल होगा, इस पाउच में कोई मसल नहीं, क्योंकि मसल फाइबर डेसिकेट किया तभी तो पाउच बाहर निकला, मसल फाइबर तो फट चुके हैं, डेसिकेट कर चुके हैं, कोई हाँ। मसल नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं पल्शन, पल्शन मतलब होता है प्रेशर, पुश रीजन, पुश की वजह से, ठीक है। एक और चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये पाउच क्यों निकल सकता है, खुद बताओ, एक और क्या तरीका है पाउच निकलने का, बाहर से कोई चीज़ टान रहा होगा, सक कर रहा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पाउच ऐसे निकल जाएगा, अगर बाहर से कुछ टान रहा होगा। मतलब ईसोफेगस के आसपास क्या एक एरिया, छाती का एरिया है, ठीक है, छाती का एरिया मान लो ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है या फाइब्रोसिस हो जाता है, फाइब्रोसिस मतलब सब चीज़ का सिकुड़ गया है तो ये सक करने लगेगा हर चीज़। तो बाहर में अगर फाइब्रोसिस हो गया, अगर कोई बहुत चीज़ फाइब्रोसिस हो गया, छोटा हो गया, श्रिंक हो गया, श्रिंक करेगा तो पुलिंग, पुलिंग की वजह से ट्रैक्शन मतलब होता है पुलिंग, उसकी वजह से भी क्या लगेगा, आउट पाउचिंग लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, कुछ कुछ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये पुशिंग की वजह से नहीं है ना, फटने की वजह से नहीं है, प्रेशर हाई होने की वजह से, तो सिर्फ तानने की वजह से, तो इसमें मसल फाइबर्स तो कुछ ना कुछ होंगे, ठीक है। वो बात अलग है कि जब तुम टांग रहे होगे तो मसल फाइबर पीछे की तरफ आ जाएंगे, लेकिन ग्लूकोजा अभी भी क्या रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा, तुम खाली टाने में मसल फाइबर इधर आ गए। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें सारे के सारे जो लेयर्स होते हैं वो नहीं होता है, इसमें सारे के सारे, इसमें भी लेयर नहीं एक तरीके से देखा जाए, लेकिन बस डिफरेंस क्या है कि इसमें मसल लेयर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इसमें मसल लेयर जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। बेसिकली ये डिफरेंस है। अब इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्टिकुलम, ठीक है। डाइवर्टिकुलम के बाद अब हम लोग देखते हैं तुम्हारा, अगर तुम्हें देखना है, अगर नाम जानना है तो देख लो, नाम भी जान लो। ये देख लो, ये स्टमक ले लिया मैंने, ठीक है, ये स्टमक ले लिया, ये मैंने डायफ्राग्राम मान लिया, ठीक है। तो इधर क्या होता है, स्फिंक्टर होता है और इधर स्फिंक्टर होता है, दो स्फिंक्टर है, ऊपर में मैंने क्रिकोफैरिंग्स का बनाया, क्रिकोफैरिंग्स के बाद मैंने बोला है नर्वस एरिया होता है एक तरीके से, ठीक है। तो क्या होगा, स्फिंक्टर के ऊपर जो देखने को मिलेगा, ये पल्शन देखने को मिलेगा, स्फिंक्टर के ऊपर में पल्शन वाला डाइवर्टिकुलम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं जेंकर, इसको जेंकर डाइवर्टिकुलम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है फ्रेनिक मतलब होता है, फ्रेनिक मतलब डायफ्राग्राम होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एपी, एपी मतलब ऊपर में, तो एपी फ्रेनिक, ठीक है। अरे ज़्यादा तो हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया क्या, अरे नहीं नहीं। अच्छा। जो ट्रैक्शन डाइवर्टिकुलम होता है वो कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को, क्योंकि देखो प्रेशर वाला तो यहीं देखने को मिलेगा स्फिंक्टर के ऊपर देखा जाए तो, और ट्रैक्शन तो बीच में कहीं पे होगा, ठीक है। तो मिडल में तुम्हें क्या देखने को मिलता है, ट्रैक्शन डाइवर्टिकुलम, यानी थोरैसिक इसोफेगस में ट्रैक्शन डाइवर्टिकुलम देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम लोग जेंकर डाइवर्टिकुलम के बारे में देखते हैं। जेंकर मतलब कहाँ पे था, देखो ये रहा जेंकर, ये जेंकर दिख रहा है, अबव द क्रिकोफैरिंग्स, अबव द क्रिकोफैरिंग्स, देखो अबव द क्रिकोफैरिंग्स, ये रहा क्रिकोफैरिंग्स के ऊपर में, क्रिकोफैरिंग्स के ऊपर में हाई प्रेशर की वजह से तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, जेंकर डाइवर्टिकुलम देखने को मिलेगा। ये एरिया होता है, ये वीक जोन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीलियंस डेहिसेंस, क्या बोलते हैं इस एरिया को, कीलियंस डेहिसेंस बोलते हैं। देखो कीलियंस डेहिसेंस, डेहिसेंस मतलब फट जाना, मतलब
ठीक है, नैरोएज एरिया होता है थायरोफेरेंजिस क्रिकोफेरेंजिस के बीच में, ठीक है। अच्छा, अब तुमसे है ना मैं एक चीज़ पूछता हूँ, ये क्यों हो रहा है, वाई दिस थिंग इज हैपनिंग, वाई दिस आउट पाउचिंग इज देयर, बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर, बिकॉज द स्फिंक्टर इज हाई नॉट प्रेशर या रिलैक्सिंग, फिर because the sphincter is not relaxing. And why the sphincter is not relaxing, let me ask you this thing, because sphincter has two types of supply, you all know, ठीक है। एक होता है असिटाइल कोलिन का, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आते हैं और वो कॉन्स्टिट करवाते हैं, और एक अगर न्यूरॉन में एनओ नाइट्रस ऑक्साइड हो जाए तो क्या रिलैक्स करवा देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला जो होता है वो रिलैक्सेशन करवाता है, एंड एसिटाइल कोलिन जो होता है वो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं अक्लेशिया, अक्लेशिया कार्डिया, जो नीट में भी आया हुआ है वैसे, अक्लेशिया कार्डिया। अक्लेशिया कार्डिया में क्या होता है, हाँ, तो ये अक्लेशिया कार्डिया में क्या होता है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड वाला जो न्यूरॉन्स होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं बेसिकली, डेफिशिएंसी, नो नाइट्रोजन ऑक्साइड पर, तो क्या होगा, ये स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं होगा, स्फिंक्टर रिलैक्सेशन रिलैक्स नहीं होगा होगा, नहीं, स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, रिलैक्सेशन बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, तो फिर अगेन ये तुम्हें क्या मिलेगा, जेंकर डाइवर्टिकुलम देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ लो इस चीज़ को, बेसिकली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये पोस्टीरियर आउट पाउचिंग तुम्हें देखने को मिलता है। और क्या प्रेजेंटेशन होगा पेशेंट का, बताओ तो, पेशेंट तुम्हारे पास आएगा, क्या प्रेजेंटेशन होगा, वो बोले कि डॉक्टर साहब मेरे को कुछ गिटने में प्रॉब्लम हो रहा है, डिस्फेजिया होगा, बिकॉज स्फिंक्टर तो कॉन्ट्रैक्टेड है, डिस्फेजिया होगा, जो खाएगा वो नीचे जाएगा नहीं तो वो उल्टी हो जाएगा, वॉमिटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। मुंह से बांस आएगा, क्योंकि खाना तो कहाँ चला गया, खाना इस पाउच के अंदर चला गया, इसोफेगस से होते हुए पीछे की तरफ आउट हो जाए, खाना पाउच में चला गया, तो बदबू आएगा मुंह से, उसको हैलिटोसिस बोलते हैं, बदबू, हैलिटोसिस, सांस से बदबू आना, ठीक है। और अगर क्या होगा, कभी कभार अगर पेशेंट लेटा तो पाउच से खाना निकलेगा, इसोफेगस से ऊपर चढ़ के लैरिंग्स में चला जाएगा और सांस वाली नली में चला जाएगा, उसको मैं बोलते हैं एस्पिरेशन, और एस्पिरेशन हो जाता है। एस्पिरेशन मतलब उसको पीछे से निकला, आगे वाले ट्यूब में चला गया, समझ रहे हो इस चीज़ को, क्या हो रहा है, पेशेंट जब लेटता है, there is increased risk of cancer in this thing, 0.5% रिस्क ऑफ कैंसर होता है वैसे, ठीक है। मोर देन 55 ईयर में तुम्हें देखने को मिलता है ये चीज़ वैसे, इसोफेगस के पीछे। तो तीन तरह का तुम्हें ये जेंकर डाइवर्टिकुलम देखने को मिलता है, तीन तरह का साइज़ हो गया, साइज़ अलग अलग हो सकता है ना, ये जो साइज़ है इसका, जो पाउच का साइज़ है, स्मॉल बोलेंगे अगर 2 सेंटीमीटर से कम साइज़ है, अगर 2 से 4 सेंटीमीटर है तो इसको इंटरमीडिएट बोलेंगे, और 4 सेंटीमीटर से अगर ये बड़ा है तो इसको हम लोग बिग डाइवर्टिकुलम बोलेंगे या बिग आउट पाउचिंग बोलेंगे, ठीक है। तो अभी क्या है, सबसे इसमें तुम इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शन या बेरियम सॉलो कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा बेरियम सॉलो, देख लो इधर लिख दिखा देता हूँ, जेंकर ऑन बेरियम, देखो जेंकर ऑन बेरियम इमेजेस, ये देखो, देखो कैसे एक पाउच दिख रहा है, ये पूरा है जो वाइट वाइट है, ये पूरा डाई है बेरियम का, और पीछे पे देखो डाई चला गया तो इस तरह का पाउच में दिख रहा है, दैट इज जेंकर डाइवर्टिकुलम, टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर और तुम्हें देखना है, तुम एक और तरीका क्या कर सकते हो, एंडोस्कोपी कर सकते हो, एंडोस्कोपी से मिल सकता है। और तुम्हें एक और चीज़ देखना है तो मैनोमेट्री करो, मैनोमेट्री क्या करता है, तुम एक कैथेटर लेते हो, अंदर डालते हो और वो कैथेटर तुम्हें प्रेशर बता देता है, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा हाई प्रेशर जोन है। अच्छा मुझे बताओ, तुम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस जगह पे तुम, अगर तुम्हें ट्रीटमेंट करना, तुम ट्रीटमेंट कैसे करोगे, हाउ विल यू ट्रीट दिस, इफ सपोज यू आर अ सर्जन एंड यू, हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट दिस आउट पाउचिंग, जो गले में पीछे में यहाँ पे क्रिकोफेरिंग्स के पास है, क्रिकोफेरिंग्स के पास पीछे में आउट पाउचिंग है। सबसे पहले तो उसको मेडिसिन देके स्फिंक्टर रिलैक्स हो। क्या सा मेडिसिन देने से स्फिंक्टर रिलैक्स, कैसा तुम क्या मेडिसिन दोगे, हाँ तुम दे सकते हो अरे वो वैसे, नाइट्रस बीटा ब्लॉकर, और तुम जैसे हाँ बीटा ब्लॉकर, और तुम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सॉरी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नाइट्रस ऑक्साइड वाला तुम दे सकते हो, नाइट्रेट्स, बट वो उसमें फ़ायदा नहीं करता, ठीक है। देखा अगर बहुत बिग है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, उससे बड़ा बिग डाइवर्टिकुलम है, देन वॉट यू आर गोइंग टू डू, देखो हाँ, पूरे सर्जरी में एक्टोमी मतलब होता है रिमूवल, ठीक है, हाँ ऑटोमी मतलब होता है ओपनिंग, और ऑस्टोमी, खाली ऑटोमी में खाली एस आ गया, ऑस्टोमी मतलब इस तरीके से ओपनिंग करना कि वो स्किन से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मान लो ट्यूब है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे छेद कर रहा हूँ, पेशेंट है गले से खाना नहीं खा पा रहा, गले में कैंसर हो गया, तो मैं ट्यूब को लूँगा, ट्यूब को यहाँ से पेट में परफोरेट करके ऊपर से डाल दूंगा ट्यूब, और यहाँ से खाना पेट में डायरेक्ट जाएगा। तो ये क्या है, जो मैंने ओपनिंग किया, ये ओपनिंग कंटिन्यूस है ना, बंद नहीं हो रहा है, दिस इज द गैस्ट्रोस्टमी, क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोस्टमी, रोस्ट। ऑस्टमी, ऑस्टमी। और ऑटमी मतलब होता है ओपनिंग करना, फॉर एग्जांपल ओपनिंग करना, क्या ओपनिंग करना तुम्हें, ओपनिंग मान लीजिए कुछ भी खोलना है, आ रहा है,
किसी को सांस नहीं आ रहा है तो उसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा कट लगा हाँ देते वो हैं। लेकिन वो ट्रेकियोस्टोमी हो गया, ट्रेकियोस्टोमी अगेन ऑस्टोमी, बिकॉज खोल के यहाँ से स्किन से परमानेंट कर दिया ना, स्किन से जोड़ दिया ऑस्टोमी। ऑटमी मतलब सिर्फ ओपनिंग होल कर देना, होल कर देना, ठीक है। ऑटमी मतलब होल कर, एक्टमी मतलब निकाल लेना, एक्टमी मतलब जैसे तुम यूट्रस में पढ़े हो हिस्टेरेक्टमी, Vasectomy, हिस्टेरेक्टोमी, वैसेक्टोमी, लाइक दैट, ठीक है। तो बेसिकली अगर इतना बड़ा जेंका है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर जस्ट, तुम क्या करोगे, काट दोगे इसको, यू बेसिकली कट इट। और कट करने के बाद तुम क्या करोगे, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरीके से मसल है तुम्हारा, और तुम क्या करोगे, कट कर दोगे, कट करने के बाद तुम्हारा इस तरीके से तुम सूचर कर दोगे। बट देखा जाए तो इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्टिकुलम काटना है तो डाइवर्टिकुलेक्टमी, दिस इज द सर्जरी। लेकिन अब देखो क्यों है, अब एक बार फट गया लेकिन स्फिंक्टर से तुम्हें कुछ किया नहीं ना, मेन प्रॉब्लम तो स्फिंक्टर का, यू हैव टू रिलैक्स दैट स्फिंक्टर। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू कट दिस थिंग, काट दो इसको, sphincter को ही। स्फिंक्टर को काट दो, रिलैक्स हो जाएगा। तो ये क्रिकोफैरिंग्स का है, तो क्रिकोफैरिंगो मायोटमी, क्रिकोफैरिंगो मायोटमी, क्रिकोफैरिंग्स के मसल, मायो मतलब मसल, क्रिकोफैरिंग्स मसल को ओपन कर दो काट के, तो क्रिकोफैरिंगो मायोटमी हो जाएगा। अगर तुम नहीं काटोगे तो अगेन प्रेशर हाई होगा एंड अगेन देयर विल बी दिस डाइवर्टिकुलम फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि जो डाइवर्टिकुलम है अगर उसका साइज बहुत छोटा है, लेस देन 2 सेंटीमीटर, एकदम चिन्ना सा है, देन तुम क्या करोगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम इसमें बॉटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन दे दो, बॉटुलिनम टॉक्सिन का, बॉटुलिन टॉक्सिन का इंजेक्शन देते हो। बॉटुलिन टॉक्सिन क्या करेगा, प्री कैंग्लियोनिक न्यूरॉन के पास जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है बॉटुलिन टॉक्सिन जो होता है वो तुम्हारा 3 से 4 महीना में अगेन उसका पावर खत्म हो जाएगा, अगेन दिस मसल विल ओवर एक्टिवेट, 3 से 4 महीना में अगेन सिम्टम विल ऑकर। तो लेस देन 2 सेंटीमीटर पे यू कैन गिव, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और मायोटमी करेंगे लेकिन डाइवर्टिकुलेक्टमी का जरूरत नहीं है, अगर 2 सेंटीमीटर छोटा, बताओ ये तो छोटा सा, तो वाई यू आर गोइंग टू दिस डाइवर्टिकुलेक्टमी, डाइवर्टिकुलम काटना कोई वो नहीं है देखा जाए तो। हाँ तो मायोटमी कर सकते हो जस्ट टू रिलैक्स दिस थिंग, यू कैन डू मायोटमी। लेकिन अगर मान लो कि मतलब इस, तो sphincter को थोड़ा सा काट हाँ लेकिन अगर सील मान लो देना होगा। साइज 2 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर है, देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू, देख ये है, ये तुम्हारा हो गया डाइवर्टिकुलेक्टमी। देन व्हाट यू आर गोइंग टू, तुम आओगे एंडोस्कोपी से अपना हाथ नीचे घुसाओगे, एंडोस्कोप से इसको पकड़ोगे, इसको पकड़ के तुम क्या करोगे, फ्लैप बनाओगे और इधर इसको स्टेपलर कर दोगे, यहाँ से निकाल के ऊपर में स्टेपलर कर दोगे, मतलब इसको अंदर जाओगे, हाथ डालोगे, उसको बाहर निकालोगे, ऊपर में सटा के स्टेपलर कर दोगे। समझ में आ रहा है चीज़, मतलब तुम क्या करोगे, इस तरीके से ही हो जाएगा, देखो इस, ये तरीका है, तुम इसको पकड़ के यहाँ ले गए, या इसको खींच के ऐसे चिपका देंगे हाँ एकदम। इसको घींच के वहाँ पे सूचर कर देना, हो गया। 2 to 4 सेंटीमीटर में तुम्हारा ये काम कर जाएगा। हाँ मायोटमी भी तुम कर सकते हो ताकि वापस नहीं हो, मायोटमी कर लेना। एंड यहाँ पे क्योंकि तुम डाइवर्टिकुलम को रिपेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे डाइवर्टिकुलम पैक्सी हो जाएगा, पैक्सी मतलब होता है रिपेयर, पैक्सी मतलब रिपेयर होता है, डाइवर्टिकुलम पैक्सी। दिस इज द थिंग अबाउट द डाइवर्टिकुलम, ठीक है। अच्छा अब हम लोग ये सिम्टम तुम्हारा कंप्लीट हुआ, ऑपरेशन का नाम है डॉलबैन ऑपरेशन, इसको स्टेपलर से करते हैं, एंडोस्कोपी से डॉलमेंस ऑपरेशन। तो बेसिकली व्हाट आई एम टीचिंग यू सर्जरी, ईसोफेगस में सिर्फ एक बीमारी पड़ी है, डाइवर्टिकुलम, देर आर मेनी मोर डिजीजेज, मतलब मेनी मोर डिजीजेज लाइक फॉर एग्जाम्पल ईसोफेजियल वेब्स, या मान लो प्लमर विंसन सिंड्रोम, प्लमर विंसन सिंड्रोम, या इसी को हम लोग बोलते हैं पीटरसन केली सिंड्रोम, पीटरसन केली सिंड्रोम। व्हाट इज दिस थिंग, पीटरसन केली सिंड्रोम? एक्चुअली देखो देखा जाए तो वेब क्या होता है, वेब मतलब होता है जाला, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हारे सामने ये ईसोफेगस ले लिया, ठीक है, ये ईसोफेगस है, ये वॉल्स है ईसोफेगस का, इसमें क्या हुआ, इस तरीके से अपेंडेज हो गया, दिस इज द ईसोफेजियल वेब, सिमेट्रिकल है, दोनों साइड से आ रहा है, देखा जाए म्यूकोजल है, म्यूकोजा से राइज कर रहा है, म्यूकोजा जो होता है वो हाइपरट्रॉफी हो गया, म्यूकोजा जो है वो बढ़ गया, लाइक दैट, ठीक है। सिमेट्रिकल वेब कहलाएगा, जब सिमेट्रिकल वेब होगा तो ल्यूमन क्या हो जाएगा, पहले इतना बड़ा था लेकिन अब ल्यूमन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ रहे हो इस चीज़ मैं को? आपको एक बार पढ़े तो सब याद रह गया था। नहीं ऐसे सोच रहे हैं मतलब। हाँ ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार पढ़ने मतलब जैसे आप एक बार पढ़ लिए इसको, हाँ फिर एग्जाम में नए रिवीजन करके गए, खाली थोड़ा मोड़ा देख लिए तब एग्ज़ाम में, ऐसे जाना पड़ता है। एग्ज़ाम में पढ़ के जाने के बाद भी याद नहीं रहता है। ये भी है। ये तो एक बार कोई पढ़ेगा नहीं, रिवाइज करेगा, 2 महीने बाद फिर भूल जाएगा। 2 महीने का 5 दिन में भूल जाएगा। 5 दिन में भूल जाएगा, नाम नहीं याद रहेगा कौन सी सिंड्रोम।
अरे यार मिनीमो सिंड्रोम तो प्लमर विंसन में क्या होता है, असिमेट्रिकल, खाली एक जगह ही निकलता है, ठीक है, असिमेट्रिकल, सिर्फ एक बॉल में तुम्हें क्या निकलेगा, वेब देखने को मिलेगा। तो ये पे यहाँ पे अगर मान लो ये ल्यूमेन था, अगर तुम ऊपर से देख रहे हो तो ये जो ल्यूमेन बनेगा ये कुछ इस तरीके का बनेगा, क्योंकि एक साइड का है और एक साइड का नहीं है। अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग और नॉट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। समझ तो एंडोस्कोपिक पिक्चर में तुम्हें इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो बेसिकली दिस इज द प्लमर विंसन सिंड्रोम, या ये जो ईसोफेजियल वेब्स है ये असिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ इट इज़ नॉट फुल थिकनेस, ओनली म्यूकोजा इज इन्वॉल्व, ऐसा नहीं कि मसल्स भी आ गए वो भी अपना वेब बना रहे अंदर में अपेंडेज ले रहे, लाइक नॉट लाइक दैट, ठीक है। ओनली म्यूकोजा इज इन्वॉल्व, ठीक है। देखा जाए मैंने इसमें बहुत सारा डेटा तुम्हें बताया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल में मोर कॉमन है, मेल से ये हर जगह आफ्टर 40 ईयर्स देखने को मिलता है हम लोग को। पेरी एंड पोस्ट मेनोपॉजल जो महिलाएं होती 40 साल के उनमें देखने को मिलता है। बेसिकली इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज एसोसिएटेड विद आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। व्हाट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया? इट एक्चुअली देयर इज सम एसोसिएशन, मतलब देखा गया है कि जिसको ये बीमारी होती है उसमें आयरन डेफिशिएंसी भी देखने को मिलता है हमको, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो असिम्टोमेटिक होता है क्योंकि वेब से आराम से खाना नीचे चला जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है, रेयरली डिस्पेजिया कैन ऑल्सो बी सीन। इस डिस्पेजिया को हम लोग क्या बोलते हैं, सिड्रोपेनिक डिस्पेजिया। सिड्रो मतलब हो गया आयरन, पेनिक मतलब हो गया डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से देयर इज म्यूकोसल हाइपरट्रॉफी एंड दैट विल रिजल्ट इन व्हाट, दैट विल रिजल्ट इन दिस वेब फॉर्मेशन, ठीक है। हाई कैंसर रिस्क होता है इसमें। प्लमर विंसन में कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें भी डिस्पेजिया है एंड जेंकर में भी डिस्पेजिया है। एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगेन बेरियम स्वालो है। बेरियम स्वालो करेंगे तो वो हमें ऑब्स्ट्रक्शन का बता देगा। ट्रीटमेंट क्या है, तुम अनीमिया को करेक्ट कर सकते हो आयरन टैबलेट्स दे के। फिर एक और तरीका क्या है, तुम अंदर में क्या करोगे, ट्यूब से एक बैलून को डालोगे और बैलून को फुला दोगे। जब बैलून फूलेगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अंदर में जाके तुम क्या करोगे, बेसिकली व्हाट यू गोइंग टू डू इज दिस इज द बैलून एंड यू विल गो बैलून डायलेटेशन। बैलून को जाके बैलून को फुला दोगे, बैलून विल राइज एंड दिस विल मतलब कंप्रेस एंड द ल्यूमेन विल गेट टू इट्स नॉर्मल साइज, दैट इज द बैलून डायलेटेशन। बैलून डायलेटेशन, ठीक है। एंड अगेन देयर इज वन मोर थिंग दैट इज अ CO2 लेजर एक्सcision. This is the laser which is having CO2, using CO2 and you will just ablate that area with the help of CO2. जला दोगे तुम इस एरिया को, ठीक है। CO2 लेजर एक्सcision, this can also be done. Basically you do not want to cut the web because इस वेब का क्या होता है, बहुत सारा सप्लाई होता है, ठीक है। अगेन नाउ अभी इसके आगे जो बहुत कुछ है, मतलब देयर इज नो एंड। अभी तो स्टार्ट जैसे 2 टॉपिक हुए एंड इट इज़ 51 मिनट्स नाउ, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है, तुम्हें लग हाँ रहा है? हाँ, मजा तो आ रहा है, शुरू का 40 मिनट आया था। अभी अभी 52 मिनट हो रहा है, 40 मिनट आया नाम है कि? ज्यादा हो गया था, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। अच्छा, शॉर्ट स्कीरिंग, दिस इज वन मोर थिंग, व्हाट इज शॉर्ट स्कीरिंग? शॉर्ट स्कीरिंग देखो क्या होता है, इसको हम लोग बी रिंग भी बोलते हैं वैसे। शॉर्ट स्कीरिंग को देखा जाए तो अगर ये मैं तुम्हारे सामने ईसोफेगस ले लूँ, ये स्टमक ले लूँ, ये तुम्हारे पास डायफ्राग्राम है, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो एरिया होता है ये एकदम हाई प्रेशर जोन होता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि देखा जाए तो देर इज रिंग फॉर्मेशन, रिंग इस म्यूकोजा में रिंग फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं